Success Mantra. We shape future. Hello, welcome back. Welcome to another session of polity section. And as you know that yesterday we have discussed about the center-state relation, and there we discussed the first part of the center-state relation, the legislative relation. Now today we are going to discuss the administrative relation between the center and state. Okay, please have a look. This is the entire section. Okay, we discuss center-state relation, and center-state relation consists the relationship between center and states. There is a union government, center government, and below that there are several states. उनकी government होती है, and they correlate with each other. Coordination is the key, and they want to maintain the harmonious relation with each other. Center state with the other central state government try to maintain the harmonious relation with the state legislation. So we discussed that in this legislative section. There are total 4 types of legislative relation as we discussed in previous class. First one is territorial extent, second one is distribution of legislative subject, parliamentary legislation in the field of state, and fourth one is center's control over the state legislation. These are the 4 important legislative relation between the center and state. Basically, there is a one union government in center at central level and multiple state governments in state legislation. So how we can manage the relationship between the center and state, we discussed in this part. Previous lecture we discussed this कि कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ लेजिस्लेटिव रिलेशन मेंटेन कर पाती है. इन फर्स्ट सेक्शन वी डिफाइन द टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड एज वेल एज इन स्टेट गवर्नमेंट, कि सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ पर किस एरिया में अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकती है, उनको फ्रेम करने की परमिशन किस लेवल तक है. स्टेट गवर्नमेंट किस किस टेरिटरी के लिए जो है वो एक्ट फॉर्मेशन कर सकती है. तो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट विल can make the rules for the entire nation, and state government can make the laws for the particular state. Goa government can make the laws for the Goa territory, as well as Maharashtra government can make the laws for the Maharashtrian territory. But the union government, the central government, can make the rules or laws for the entire India. So that is the territorial extent. Then we discuss the legislative subjects. We discuss the 3 lists: central list, state list, and concurrent list. In central list, the whole power goes to the central government. Central government can make laws in the central subjects like defense, like finance, like external affairs. State government can make the rules on the state list subject like police, forest, etc. There are multiple subjects we have discussed in last class. Third, parliamentary legislation in the field, in the state field. From here we can, as we discussed, from here the problem can be arise because now parliament can step aside from its territory and enter into the zone of the state. कि कब parliament अपनी territory से बाहर निकलकर अपने सब्जेक्ट लिस्ट से बाहर निकलकर स्टेट के सब्जेक्ट पर लिस्ट बना रही है, तो यहाँ पर फिर दिक्कत हो जाएगी ना कि ये पार्लियामेंट की टेरिटरी है एंड दिस इज द टेरिटरी ऑफ स्टेट्स. एवरीथिंग इज फाइन जब तक कि पार्लियामेंट अपनी टेरिटरी में लॉ बनाए एंड स्टेट अपने में. अगर पार्लियामेंट ट्राई टू एंटर इनटू द स्टेट लेजिस्लेशन देन कैन बी प्रॉब्लम. और वही हमने समझा कब कब हो सकती है. उन्हीं इमरजेंसी प्रोविजंस को भी हमने समझा कि कब कब हो सकता है कि पार्लियामेंट को ये अथॉरिटी मिल जाए कि वो स्टेट लेजिस्लेशन में, स्टेट फील्ड में जो है वो लेजिस्लेशन का काम कर सके, एक्ट फॉर्मेशन का काम कर सके, लॉ फॉर्मेशन का काम कर सके. एंड लास्ट वन, सेंट्रल्स कंट्रोल ओवर स्टेट लेजिस्लेशन. सेंटर कब पूरी तरह से कंट्रोल कर लेगा स्टेट के ऊपर. द सेंट्रल गवर्नमेंट टुक होल कंट्रोल ओवर द स्टेट लेजिस्लेशन. स्टेट गवर्नमेंट विल बी सस्पेंडेड और बॉयकॉट बाय द गवर्नर. चुनी हुई सरकार जो चुनी है वहाँ के लोगों ने, सीएम और उसकी कैबिनेट, उसको हटा दिया जाएगा, असाइड कर दिया जाएगा और सेंटर जो है वो सीधे कंट्रोल ले लेगा इनटू द स्टेट. वी डिस्कस इट हियर. So these are the 4 legislative legislation. A dedicated lecture given by me in previous class. You can see there. इसको हम मेंशन कर देंगे
इस लेक्चर वाले लिंक को भी. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटर स्टेट रिलेशन, एंड द सेकेंड पार्ट इज administrative relation between the center and state, center government and state governments. So now today we are going to discuss the administrative relation between the center and state. First part, legislative, we have discussed legislative. Today we are going to discuss administrative relation. Administrative relation is also can also be called as executive relations between center and states. So what is the apex body of the central government in executive role? PM and its cabinet. And what is the apex body in state for the executive relation? CM and its council. So how can PM and its cabinet maintain their relation with CM and its cabinet? Basically ये आज हम पढ़ने जा रहे हैं. कल क्या पढ़ा? How can parliament can relate with the legislative state legislative assembly or council. कल हमने ये पढ़ा पार्लियामेंट टू विधानसभा, इन हिंदी अगर हम समझे तो पार्लियामेंट टू स्टेट लेजिस्लेचर, ये रिलेशन हमने कल पढ़ा है. आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? पीएम एंड कैबिनेट एंड सीएम एंड कैबिनेट के बीच का रिलेशन, रिलेशनशिप बिटवीन पीएम एग्जीक्यूटिव ऑफ द सेंटर एंड एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ द सेंटर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ द स्टेट. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस. आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू. सो please pay attention on this slide. Yes. Okay. So in administrative relationship, in constitution from article 256 to the article 263, there are detailed description of the administrative relation between the center and state. How can center communicate with the state in administrative manner? The whole concept will be discussed in article 256 to 263. Okay, so first basically you have to know about the article information which is discussed in where we have discussed the administrative relation in our constitution, article 256 to 263. Okay, the very okay. Just give me 1 minute. Okay, so the first type of administrative relation between the center and state, we can say the distribution of executive powers between center and state. जैसे हमने legislative में देखा था, the territorial extension of the center as well as state power. टेरिटरी देखी थी लेजिस्लेशन में कि कहाँ वो एक्ट बना सकता है, कहाँ स्टेट एक्ट बना सकते हैं. यहाँ पर हम देखेंगे कि व्हाट इज द हाउ कैन बी डिस्ट्रीब्यूट द एग्जीक्यूटिव पावर्स इन बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स. तो इन यूनियन वर्सेस स्टेट वेयर एग्जीक्यूटिव पावर्स आर सेंटर्ड एक्सटेंड टू होल इंडिया, in center government execute its administrative power into whole India, for whole India, and state government in particular state can extend its administrative power, exclusive administrative powers in legislative subjects in central segment. Center government will execute these powers,
and in state segment, state government can execute their administrative power in state subject. Okay, सिमिलर है जैसा हमने लेजिस्लेटिव सेगमेंट में पढ़ा है, ऑलमोस्ट सिमिलर है. we studied already there are 3 types of list: central list, state list and concurrent list. Central list हाईली डेडिकेटेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एक्ट बना सकती है या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर यूज कर सकती है. वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट पर जो है अपनी पावर एक्सरसाइज कर सकती है. तो स्टेट गवर्नमेंट कैन एग्जीक्यूट देयर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर इन स्टेट सेगमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट कैन एग्जीक्यूट देयर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर इनटू होल इंडिया. पीएम कैन एग्जीक्यूट देयर एग्जीक्यूटिव पावर एज इन Kerala as well as in Tamil Nadu, as well as in Mumbai, as well as in Delhi, while Chief Minister of Uttarakhand or UP can exercise their administrative power only in UP, only or in Uttarakhand. जहाँ के वो CM होंगे वहीं पर वो अपनी पावर एग्जीक्यूट कर पाएंगे. सेंट्रल गवर्नमेंट जहाँ भी चाहे वो पावर एग्जीक्यूट कर सकती है. पीएम साहब पूरे देश में कहीं भी वो चाहे अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर एग्जीक्यूट कर सकते हैं. तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर्स, Constitution defined their boundary. Central government can execute their administrative power into whole India, while state government can execute their executive power in particular states. So this is the first criteria which we have to study this under the administrative relation between the center and states. तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को किसी स्टेट को बोलना होगा कुछ काम करने के लिए तो पीएम साहब बोलेंगे सीएम जी से कि ये काम करना है, ठीक है. लेकिन अगर सीएम साहब को, उत्तराखंड के सीएम साहब को या यूपी के सीएम साहब को अगर एमपी के सीएम साहब से कुछ बोलना है तो उनको वो रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, वो ऑर्डर नहीं दे सकते. प्राइम मिनिस्टर कैन ऑर्डर ऑल सीएम्स विद रिस्पेक्ट टू हिज एग्जीक्यूटिव पावर्स, क्योंकि उनकी एग्जीक्यूटिव पावर पूरे इंडिया पे लागू होती है, तो किसी को भी सीएम को भी बोल सकते हैं. वाइल वन स्टेट सीएम कैन नॉट ऑर्डर अनदर सीएम कि मुझे आप ऐसा कीजिए, ऐसा करना चाहिए, ठीक है. दे कैन रिक्वेस्ट कि हाँ ऐसा कर सकते हैं तो ठीक है. लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट कैन ऑर्डर टू दी एवरी स्टेट अकॉर्डिंग टू देयर नीड एंड रिक्वायरमेंट, ठीक है. तो ये याद रखना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट सारी स्टेट को कर सकती है, ऑर्डर दे सकती है एग्जीक्यूटिव पावर के लिए, while state government can execute its executive power in particular states. Okay, second, center's direction to the states. Okay, please pay attention on this segment. In constitution there are clearly mentioned those area where center government can direct to the states directly. Number one, for communication maintenance, to establish a proper communication, to establish the important tools for the communication, central government direct to the states कि आपको ये maintain करना पड़ेगा. Communication is a key in the democracy. A country like India where a huge diversity is there from Jammu Kashmir to Kanyakumari, if there is a gap in the communication तो प्रॉब्लम तो होगी, है ना. तो ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो कम्युनिकेशन को मेंटेन करेगा विद द सेंटर, ठीक है. एज मच एज इट कैन बी पॉसिबल जो सेंट्रल गवर्नमेंट है स्टेट गवर्नमेंट के साथ कम्युनिकेट करना चाहेगी किसी भी टाइम तो वो कम्युनिकेशन होगा, एंड स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो उस कम्युनिकेशन को मेंटेन करके रखे, ठीक है. ट्रांसपोर्टेशन के सेगमेंट में हो सकता है, it can be in the form of discussion हो सकता है, it can be in the form of transportation, it can be in the form of any mean of the communication can be maintained by the state with respect to central government because it is in a prime concern in a union. As we know, India is a union और union में in the concept of union center is relatively slightly more powerful compared to the state. तो center की बात आपको सुननी पड़ेगी. सेंटर ने अगर ऑर्डर दिया है कि कम्युनिकेशन मेंटेन करना है तो कम्युनिकेशन मेंटेन करना पड़ेगा आपको, ठीक है. सेकंड वन, प्रोटेक्शन ऑफ द रेलवे प्रॉपर्टी. रेलवे प्रॉपर्टी को स्टेट में प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी सेंटर की नहीं है, स्टेट की है. इट्स अप टू ऑन द स्टेट गवर्नमेंट हु इज रेस्पॉन्सिबल टू मेंटेन द रेलवे प्रॉपर्टी इन दैट पर्टिकुलर स्टेट. इसका क्या मतलब हुआ? व्हेन ब्रिटिश एस्टेब्लिश द रेलवे, the railway was a very important segment in that time in India.
by the railway, British joint establish a proper link from North India to South India and West to East India. तो रेलवे ने लिंक किया है पूरे इंडिया को, जोड़ने का काम किया है, और बहुत ही तेजी से मूवमेंट कराने में रेलवे क्या है वो बड़ी ही फ्रूटफुल रही। पुराना आजकल तो खैर मीडियम चेंज हो गए, लेकिन फिर भी उस टाइम पे थे जब कंट्री इंडिपेंडेंट हुआ तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को लगा कि रेलवे में वो पोटेंशियल है जो पूरी दुनिया पूरे भारत को बांध के रख सकता है। यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया में रेलवे का एक इंपॉर्टेंट रोल रहा है। तो रेलवे की प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना स्टेट की जिम्मेदारी होगी, और इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट सीधे ऑर्डर दे सकती है किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को कि आपके यहाँ ये प्रॉपर्टी, रेलवे प्रॉपर्टी क्यों डैमेज की जा रही है, आप इसको तुरंत मेंटेन कीजिए, क्योंकि इट वाज द ओनली मीन इन दैट टाइम पीरियड टू फास्ट मूव फॉर द फास्ट मूवमेंट फ्रॉम दिल्ली टू तमिलनाडु, टू दिल्ली टू केरला, टू दिल्ली टू नॉर्थ ईस्ट। अगर रेलवे ही नहीं होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। सो इफ in the railway segment, central government can give direct order to the state government to protect it properly. Okay, what we have studying ki administrative relation between center and state. First we have discussed distribution of executive powers. Now we are discussing center's direction to the state कि कब center जो है state को direction दे पाएगा। तो उसमें हमने 2 पॉइंट पढ़े। फर्स्ट, कम्युनिकेशन मेंटेन करेगा स्टेट, एंड सेकंड, रेलवे को मेंटेन करेगा स्टेट। थर्ड वन, फैसिलिटेट प्राइमरी एजुकेशन फॉर माइनॉरिटीज अंडर मदर टंग लैंग्वेज। ठीक, मदर टंग लैंग्वेज आर डिफरेंट फॉर द पर्टिकुलर रीजन। केरला इट मे बी मलयालम, इन तमिलनाडु इट विल बी तमिल, इन आंध्र प्रदेश इट विल बी तेलुगु, इन महाराष्ट्र इट विल बी मराठी, इन यूपी, उत्तराखंड, एमपी इट विल बी हिंदी। सो स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट कैन गिव द डायरेक्शन टू द स्टेट कि वहाँ के बच्चों की जो बेसिक एजुकेशन है वो मदर टंग में हो, स्पेशली फॉर द माइनॉरिटीज एंड माइनॉरिटीज ऑफ स्पेशली इन अंडर SC ST कम्युनिटी, स्पेसिफिकली ST जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के जो पर्सन्स हैं उनके बच्चों की जो एजुकेशन हो वो मदर टंग में हो। इसके लिए स्टेट को डायरेक्शन दे सकता है सेंटर। इन फ्यूचर मे बी पॉसिबल कि कोई स्टेट अपनी लैंग्वेज को चेंज करना चाहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको ये इन प्रॉपर तरीके से अपनी लैंग्वेज को, ऑफिशियल लैंग्वेज को अगर चेंज करना चाहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट कैन डायरेक्ट दैट स्टेट कि नो, यू कैन नॉट eradicate this particular mother tongue of a particular community on the biasness। आप ऐसा नहीं कर सकते। To protect the religious and cultural benefits for the minority sections, central government can give the direction to the state government to implement the primary education in their areas in mother tongue language, ताकि जो minorities हैं उनका कल्चर आगे बढ़ाया जा सके, आगे बढ़े उनका कल्चर धीरे धीरे। ठीक है, इस मामले में भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को सीधे डायरेक्शन दे सकती है। नेक्स्ट है फोर्थ वन, एग्जीक्यूट वेलफेयर स्कीम इन फॉर द वेलफेयर ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। शेड्यूल्ड ट्राइब्स के वेलफेयर के लिए, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द लाइफ स्टाइल ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स, सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली गेव ऑर्डर टू द स्टेट गवर्नमेंट। लेट्स सपोज इन मध्य प्रदेश the maximum tribal area people will live in nowadays living in MP। क्या हो अगर ST पॉपुलेशन जो वैसे ही माइनॉरिटी में है, वो कम पढ़े लिखे हैं, कम एजुकेटेड हैं, और पावर जो है वो पढ़े लिखे लोगों ने एक्वायर की हुई है, अपर क्लास ने एक्वायर की हुई है MP में। लेट्स सपोज अगर वो चाहें कि जो ST शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनको हम क्या करें, उनके लिए वेलफेयर स्कीम ना चलाएं, जो पैसा आ रहा है वो ना चलाएं, उनको एजुकेट ना करें, बायसनेस हो सकती है कि भाई उनको हम गरीब रखते हैं ताकि वो हमारी गुलामी करते रहें। ये गलत है। तो इस चीज को रोकने के लिए और वेलफेयर स्कीम को चलाने के लिए, टू प्रोपगेट द वेलफेयर स्कीम एंड दैट पर्टिकुलर एरिया, द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन गिव द डायरेक्ट ऑर्डर टू द MP गवर्नमेंट कि नहीं, ये नहीं करेंगे आप, और ये स्कीम आपको चलानी है, इससे शेड्यूल्ड ट्राइब का बेनिफिट होगा। तो दीज आर द 4 क्राइटेरिया वेयर सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली गिव ऑर्डर टू द स्टेट गवर्नमेंट, एंड इन आउट ऑफ 4, 2 ऑप्शंस डायरेक्टली रिलेट विद द शेड्यूल्ड ट्राइब्स वेलफेयर और माइनॉरिटी वेलफेयर, क्योंकि ये सबसे बड़ा चैलेंज था। इन 1947 वी सॉ द पार्टीशन ऑफ इंडिया,
और बहुत ही वो खतरनाक रहा, बहुत ही दर्दनाक रहा देखने में। तो गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं चाहती थी कि माइनॉरिटीज अनसेफ फील करें कंट्री के अंदर। टू मेंटेन देयर इंटीग्रिटी, टू मेंटेन देयर मैंडेट और टू एम्पावर देम, they maintain such type of provision into the Constitution of India. Okay, so these are the two aspects under the administrative relation in India. First one is distribution of executive powers. Second one, centers direction to the state government on particular subjects. First one is communication, second one is on railway, third one on the minorities mother tongue language literacy, and fourth one is the welfare schemes for the scheduled tribes. These are the main these are the two main aspects for in between the central and state administrative relationship. Now we are moving forward, and now we are seeing the third important tool between the central state administrative relationship, and that one, cooperation between center and state. How can center cooperate with state governments? It described here under article 261, under article 262, and under article 263. These three important articles define the way how can central government communicate with the state government. In article 261, central government expect from the state that ki state government have full faith and credit in the central government. For the central government कि state government अपनी पूरी निष्ठा रखेंगे, अपना पूरा faith दिखाएंगे central government में, और साथ ही साथ throughout the territory of India to public act, record and judicial proceeding of union और एंड ऑफ एवरी स्टेट, कि हर एक यूनियन गवर्नमेंट के दिए हुए फैसले से और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दिए हुए डिसीजन से एग्री करेगा कोई भी स्टेट। समझाते हैं इस बात को। लेट्स सपोज सुप्रीम कोर्ट गिवन डिसीजन रिगार्डिंग टू यूसीसी, लेट्स सपोज, सो द स्टेट गवर्नमेंट्स कैन नॉट डिनाई द अल्टीमेट ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन पर्टिकुलर इन देयर एरियाज। ओके, if at central level Union Public Service Commission or Election Commission of India or CVC or CIC give any particular decision for the welfare of the society, then particular state उस decision से disagree नहीं कर सकता। State must have their full faith and credit into the central government. उनको वो agree करना पड़ेगा। सेंटर ने कोई ऑर्डर दिया है तो उसको आपको मानना पड़ेगा। अगर आपने नहीं माना तो फिर वो समझा जाएगा कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट को चैलेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो 261 उम्मीद करता है स्टेट से कि वो सेंटर के लिए अपना फुल फेथ रखें, अपना फुल क्रेडिट उसको दे। ठीक है, और ये हो सकता है कि इट मे बी पॉसिबल कि सेंट्रल स्टेट्स डिसीजन कैन फेवर वन पर्टिकुलर स्टेट, तो दूसरा स्टेट जो उसके अपोजिशन में है उसके अगेंस्ट में जाकर सिविल वॉर जैसी कंडीशन कंट्री के अंदर प्रोड्यूस करने की कोशिश ना करे। ये एक्सपेक्टेशन सेंट्रल गवर्नमेंट करती है स्टेट से। अगर ना करे तो फिर गवर्नमेंट हैव डिफरेंट टूल्स, वी डिस्कस लेटर। वी हैव इमरजेंसी प्रोटोकॉल ऑल्सो इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इमरजेंसी प्रोविजन ऑल्सो देयर इन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360 mention the special cases where central government can impose emergency provisions in that particular area, और फिर वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो टेक ओवर कर लेगी। अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट कोऑपरेट नहीं कर रही है सेंटर के साथ तो उसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट को सीधे सीधे चैलेंज समझा जाएगा। ठीक है, इस फेथ को मेंटेन करते हुए in constitution there is a provision of article 262 where interstate water dispute tribunals provision is there. If two states quarrel with each other for the distribution of water, specifically you can see these such type of cases in South India. Southern India's states frequently entangled with each other for the regarding to the water situation in that area, particular area. As we know that South India is made up from igneous rock structure, basically from the igneous rock structure. So the groundwater is not so much stored in the basin of the South Indian Peninsula. So they are heavily dependent on lake water or river water or monsoon water. And in the summer season, they are frequently
entangled with each other in the segment of water distribution. So in constitution there is a separate provision of dispute tribunal regarding to water dispute tribunal under article 262. सीधे सीधे बता दिया कि भाई एक ट्रिब्यूनल बना लो और उसमें वाटर डिस्प्यूट जो है वो सुलझाए जाएंगे. क्यों? ताकि सेंटर और स्टेट के बीच में एक हार्मनी बनी रहे, दो स्टेट के बीच एक हार्मनी बनी रहे और इन स्टेट की सेंटर के साथ हार्मनी बनी रहे. अल्टीमेट गोल इज पब्लिक वेलफेयर. एवरी गवर्नमेंट इज इन इंडिया, whether it is central government or state government or local self government, they are here to serve the people for the public welfare. That is the ultimate goal. And 262 article 262 यही हमें फैसिलिटेट करता है कि स्टेट और सेंटर आपस में ना लड़के उस मुद्दे को सुलझा लें. वाटर डिस्प्यूट भी अगर है, पानी का मुद्दा, उसको भी सुलझा लें आपस में, ताकि कोर्ट में जाना, फिर जुडिशरी में टाइम वेस्ट करना और उससे उस दौरान जो है एथनिक वायलेंस हो जाना, दिस इज नॉट परमिसेबल इन इंडिया बिकॉज वी आर ए पीस लविंग कंट्री. तो ये सब ना हो, वाटर डिस्प्यूट्स ना हो, उसके लिए सेपरेट ट्रिब्यूनल बनाया गया है ताकि सेंटर स्टेट के बीच में रिलेशन मेंटेन रहे. एक कदम और आगे जाके वी ऑल्सो प्रोविजन अंडर आर्टिकल 263 इंटर स्टेट काउंसिल प्रोविजन. Apart from water, if there are any issue in between two countries, in between two states, or whether issue between state and center, they can solve it under article 263 in interstate council. interstate council का जो प्रोविजन है उसके अंदर पीएम जो है, उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो जो उसके जो अल्टीमेट प्रेसिडेंट होते हैं वो पीएम होते हैं और बाकी मेंबर्स उसके जितने भी स्टेट हैं उन सबके सीएम होते हैं. तो अगर किसी स्टेट को प्रॉब्लम है दूसरे स्टेट से तो कोर्ट या जुडिशरी में जाने से पहले अच्छा है कि यहां पर आ जाए अंडर आर्टिकल 263 के जो बनाई गई स्टेट काउंसिल, और पीएम वहां बैठ जाए और दोनों स्टेट के जो झगड़ने वाले स्टेट है उसके सीएम आ जाए और सुलझा लें वहां पर इश्यूज को. और अगर ऐसा हो जाता है तो वी कैन सेव अवर वैल्यूएबल टाइम एंड वैल्यूएबल एफर्ट, अननेसेसरी एफर्ट, एंड इससे वेलफेयर होगा, बहुत तेजी से डिसीजन मेकिंग हो सकती है. लेट्स सपोज if a dispute in between Manipur or Nagaland, recently we have an example in Namsai declaration can be was signed in between Assam and Arunachal Pradesh in the presence of Home Minister. It is the best example of article 263 or harmonious relation between two state and center, coordination between center and two states. Namsai declaration recently I think last month की ये न्यूज़ है, last month की I think ये न्यूज़ है. Namsai declaration was signed between Assam and Arunachal Pradesh in the presence of Amit Shah. तो जो मुद्दा इतने 1972 से इशू चल रहा है, 1972 से जो इशू चलता आ रहा है उसको हमने चंद मिनटों में, कुछ दिनों में सोल्व कर लिया कि ठीक है, द डिस्प्यूट रिगार्डिंग विद दिस डिस्प्यूट पर्टिकुलरली रिगार्डिंग विद द विलेज डिस्ट्रीब्यूशन इन बिटवीन आसाम एंड अरुणाचल प्रदेश, और उसको सॉल्व कर लिया हमने. कोर्ट जाने से बच गए, टाइम सेव हुआ, एनर्जी सेव हुई. तो आर्टिकल 263 एम्पावर द सेंट्रल गवर्नमेंट to make a harmonious relation with the states or in between two states or in between two states and center. अगर 3 स्टेट, 4 स्टेट, 5 स्टेट, 10 स्टेट अगर खुश नहीं है सेंटर के डिसीजन से तो वो आकर यहाँ बात कह सकते हैं अपनी, और सेंट्रल गवर्नमेंट उनकी बात सुनेगी और उसको समझेगी और उसके बाद फिर डिसीजन मेकिंग करेगी. Okay, so this is the important segment in the segment of administrative relation in between center and state. First one, the distribution of executive power. Second one, we have discussed it in previous slide. In first one, the distribution of the executive powers. Second one, center's direction to the states. Third in administrative relation, cooperation between center and state. And now what next? Next is provision of all India services. With the help of all India services, central government can direct in executive manner to the state government. The all India services consist IAS, IPS, IFOS, Indian Forest Service, and other Group A or Group B services officers also appointed by the Honorable President of India.
the ultimate control on these IAS officer or All India Services officers under the center government, while the immediate control on these officers is of state government. लेट सपोज कि कोई डीएम साहब हैं, यूपी में ऑपरेट कर रहे हैं, तो उन पर इमीडिएट कंट्रोल योगी जी का होगा, बट अल्टीमेट कंट्रोल प्राइम मिनिस्टर का होगा, इमीडिएट कंट्रोल गवर्नर का होगा एंड अल्टीमेट कंट्रोल प्रेसिडेंट का होगा. सर दो बार क्यों बोला? डी फैक्टो डी ज्यूर, ये याद रखना है ना. द गवर्नर इन स्टेट इज द डी ज्यूर एंड डी फैक्टो इज सीएम. एट सेंट्रल लेवल द डी ज्यूर इज प्रेसिडेंट एंड डी फैक्टो इज प्राइम मिनिस्टर. बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको पता होने चाहिए. वी डिस्कस्ड इन प्रीवियस क्लासेस. ओके, तो ऑल इंडिया सर्विसेज आर दो सर्विसेज जो जोड़ने का काम करती हैं सेंटर और स्टेट के बीच में, ब्रिजिंग करने का काम करती हैं. ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर्स कैन बी माइग्रेट अकॉर्डिंगली इन ऑल इंडिया टेरिटरी इफ देयर इज ए नेसेसिटी. अगर मान लीजिए किसी स्टेट में, ऑल्दो देयर इज ए कैडर डिवाइडेशन, बट लेट्स सपोज कि किसी स्टेट के ऑफिसर्स ने एक नेक्सस बना लिया वहां के सीएम के साथ या वहां के सिस्टम के साथ, and they want to separate themselves from the Union of India. Not possible. Central government can shift the entire civil services and appoint the new civil services officer in that area, because the ultimate control in the hand of president. Okay, so the all India services unite the central government with the state governments. Okay, and believe me, these all India services officers, they act like a safety valve or the whistleblower to the central government in regarding to the state government. अगर किसी स्टेट में कोई गड़बड़ चल रही होगी तो ये ऑफिसर्स जो हैं वो सेंटर को बता देंगे और तुरंत सेंट्रल गवर्नमेंट वहां पर एक्ट कर लेगी. तो these the provision of the all India service, which is very firstly designed by the British colonial system, they are still very useful in India. कभी कभी तो उनको आपने ऐसा भी सुना होगा, they are the steel structure in India. ठीक है, still they are, because they provide the relation, they provide the exact scenario, they provide the exact scenario in between center and state relationship. अगर सेंटर और स्टेट के बीच में कोई टेंशन है तो सबसे पहले अधिकारियों को पता चलती है, क्योंकि ऑर्डर ऊपर से आया और उसको इंप्लीमेंट करना है उस एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को, और वो अगर नहीं कर रहा है तो देयर इज सम प्रॉब्लम. Okay, so it's so simple. If the all India services officers are not responding according to the will of the central state, then central government को समझ में आ जाता है कि कुछ गड़बड़ है वहाँ पर. Let's suppose एक एग्जाम्पल समझते हैं. बंगाल, वेस्ट बंगाल एंड मोदी जी, ममता दीदी एंड मोदी जी, है ना, थोड़ा टसल है. और पीछे कुछ दिनों पहले जो है ये बातें भी सामने आई कि सेंट्रल गवर्नमेंट वांट्स टू ट्रांसफर सम एपेक्स ब्यूरोक्रेट्स इन वेस्ट बंगाल, बट ममता दीदी डोंट वांट टू चेंज देम. तो ये दिखने में आया कि जो ऑल इंडिया सर्विसेज ऑफिसर्स हैं वो कॉपरेट नहीं कर रहे हैं, है ना. उस पर फिर बाद में फिर काफ़ी कंट्रोवर्सी भी हुई, वो बात काफ़ी निकल भी आई, है ना, कि इस तरह से कैसे हो सकता है ना. तो दे वांट टू ब्रिंग दोज ऑफिसर एट द इनटू द सेंटर, बट स्टेट गवर्नमेंट डोंट वांट टू रिलीज देम, क्योंकि उसके अपने बेनिफिट्स थे, लेकिन वो रोक नहीं पाई अल्टीमेटली. आप रोक भी नहीं सकते हो, कैसे रोक लोगे आप, बिकॉज अल्टीमेट कंट्रोल तो प्रेसिडेंट का है ना. किसी भी आईएएस ऑफिसर पे या आईपीएस पे या एफओएस ऑफिसर पे जो अल्टीमेट कंट्रोल वो तो प्रेसिडेंट का है. और अगर ऐसा आप बनाने की कोशिश करोगे भी नेक्सस बनाने की, तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे इस एनवायरमेंट में. तो दीज ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर्स मेक अ ब्रिज इन बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट. और यकीन रखिए वो हमेशा सेंटर की तरफ ही झुके हुए होते हैं, क्योंकि अल्टीमेट कमान किसके हाथ में है, प्रेसिडेंट के हाथ में है. तो एक तरह से नजर रखने के लिए एजेंट हैं ऑल इंडिया सर्विस के ऑफिसर स्टेट्स के ऊपर. नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट वन इज पब्लिक सर्विस कमीशन. द अपॉइंटमेंट मेड बाय द पब्लिक सर्विस कमीशन, whether it is IES, ISS, Indian Economic Service, Indian Statistical Service, Indian Engineering Services. सेंट्रल लेवल से जाने वाले यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ही चाहे क्यों ना हो, कोई भी जॉब हो जो सेंट्रल लेवल की है, पब्लिक सर्विस कमीशन जो भी अपॉइंट कर रहा है ऑफिसर्स, दे प्रेफर द सेंटर्स गाइडेंस ओवर द स्टेट लेजिस्लेशन और एडमिनिस्ट्रेशन. अगर दिल्ली से आदेश आया है, इफ ऑर्डर केम फ्रॉम द कैपिटल ऑफ इंडिया, देन
the state officers or public service recruiters cannot deny to follow those orders. पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, वो अपॉइंट करता है ऑफिसर्स थ्रू आउट द इंडिया अकॉर्डिंग टू नीड, एंड उनके जो ऑफिसर्स होते हैं दे आर हाईली डेडिकेटेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. Although the immediate control on those officers goes to the state executive, but final authority who control the public service recruiters is vested in President of India. ठीक है, और President of India advised by the Prime Minister of India. Prime Minister of India can direct officers directly according to the need and requirements. Okay, so the Public Service Commission, another important tool which connect the center and state with each other. Next one is integrated judicial system. We provisioned integrated judicial system in India. एक सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हर एक स्टेट, मैक्सिमम स्टेट्स में हाई कोर्ट्स, और उसके नीचे क्या है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो सकते हैं. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, हाई कोर्ट, और सभी हाई कोर्ट्स के ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट. There is a provision of single Supreme Court in India. This one is integrated judicial system, and Supreme Court judges slightly bend towards the center when compared to the states. If a state file a case against the central government, so the decision of maximum time of Supreme Court lean towards the central government. ये आप देखेंगे, ये देखने को मिलेगा आपको. ओके, बहुत सारे केसेस एग्जांपल आप देख सकते हैं. तो ये इसीलिए किया गया है ताकि सेंटर का अपर हैंड रहे, बिकॉज वी आर यूनियन, वी आर डाइवर्स इन कम्युनिटी, एंड इट इज मैंडेटरी फॉर अस ड्यूरिंग द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स कि वो सेंटर को थोड़ा पावरफुल बना के रखें. अदरवाइज स्टेट, इफ यू गिव द 100% मोनोपोली और ऑटोनॉमी टू द स्टेट गवर्नमेंट, तो फिर उनके दिमाग में कुछ हो जाने लगा कि इंडिपेंडेंट हो जाते हैं. तो ऐसा हो नहीं सकता. ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ट्राइंग टू बाइंड द स्टेट गवर्नमेंट्स फॉर देयर अल्टीमेट वेलफेयर टू द पीपल ऑफ इंडिया. इंटीग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया इज द प्राइम कंसर्न फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट. आर्टिकल 1 is much more important compared to the welfare of particular state people. एक स्टेट के लोग उसके वेलफेयर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 1, और उसके लिए जो करना पड़ेगा किया जाएगा. इफ ए हाई कोर्ट इज नॉट is a high court give a negative opposite decision making, if let's suppose, take it with example, let's suppose West Bengal is not willing to took away some villages to the Bangladesh, let's suppose, but central government wants कि ठीक है, अगर हमें कुछ विलेज देखकर बांग्लादेश को, और अगर हम अपनी बाउंड्री को मेंटेन कर पाएंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक अ स्टेबल रिलेशन विद द बांग्लादेश, तो वो सुप्रीम कोर्ट में जब वो बात जाएगी ना, तो सुप्रीम कोर्ट विल फेवर द सेंटर ओवर द स्टेट और द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ वेस्ट बंगाल. और वो देखने को मिलता है, साफ साफ देखने को मिलता है आपको. ये इसीलिए हो पाता है बिकॉज वी हैव अ इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम. इन अमेरिका विच इज एन आइडियल फेडरल, वहाँ पर ऐसा नहीं होता. इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम नहीं है वहाँ पर हर एक स्टेट का अपना एक सुप्रीम सेगमेंट होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है. तो वहाँ आपको प्रोविजन दूसरी तरीके से देखने को मिलेगा वहाँ, क्योंकि यूएसए इज ए ट्रू फेडरल, वी आर नॉट अ ट्रू फेडरल. सम ऑथर्स कैन, सम क्रिटिक्स कहते हैं कि इंडिया इज ए क्वासी फेडरल, बट यू कैन अवॉइड दिस वर्ड. वी कैन से कि वी आर यूनियन, है ना, एंड इन यूनियन द पावर स्लाइटली शिफ्टेड इन द फेवर ऑफ द सेंटर, बिकॉज ये हमारी नेसेसिटी है. अगर ऐसा नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगी, इंडिया जो है छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, और ये हम नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर पाएंगे हम. ठीक है, तो सो दीज आर द इंपॉर्टेंट 6 प्रोविजन ऑफ द सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप. फर्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर. सेकेंड वन सेंटर्स डायरेक्शन टू द स्टेट्स. थर्ड वन जो हमने लास्ट देखिए, आपने सब स्लाइड्स करी हैं. थर्ड वन कोऑपरेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स. फोर्थ वन provision of all India services. Fifth one public service commission. Sixth one integrated judicial system. All these provisions
favor the state government, but still favor the central government, sorry, but still they are crucial they are crucial to maintain this administrative relation between the center and states. Next, if we focused, next one is relationship during emergency provision under article 352, 356, 360. Center government directly ordered to the state governments to follow his direction. Although you can, मैं समझ सकता हूं कि आप लोग इस चीज से अवेयर होंगे कि इमरजेंसी प्रोविजन जैसे कि लगाई गई थी इंदिरा गांधी के टाइम पे इमरजेंसी लगी. अपार्ट फ्रॉम इंदिरा गांधी टाइम पीरियड in 1962, 65, 71 and during Kargil war, we can see the emergency type of situation in India, है ना. वॉर टाइम पे तो लगती है, इंटरनल डिस्टर्बेंस के नाम पर जो इंदिरा गांधी जी ने लगाई, तो उस दौरान सेंटर can dysfunction the state powers, and there is the federal system of India will be convert into unitary system. There will be one government in entire nation, and that will be the central government. All state governments nullified, उनके पास कोई पावर नहीं रहेगी, सारी पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक्वायर कर ली जाएंगी. And central government can rule the entire India according to the need and requirement. Article 352 specially mention the special power of central government in emergency time period. Any matter which harm the integrity and unity of India, or harm the relationship between the central government with state governments or foreign countries, we can implement the emergency under article 352, and there center took direct control over the states, and state government suspended during the emergency time period. Although it may be 6 months, but for these 6 months central government will make the rules or laws for the entire nation, and state government will be in the sleep mode. वो इस पर उनके पास पावर नहीं रहती, सीएम सस्पेंड हो जाते हैं, ऐसा समझ लीजिए. अगर इमरजेंसी लग गई 352 के अंदर तो सारे सीएम वो सस्पेंड हो गए, ऐसे समझ लीजिए आप. केवल और केवल प्राइम मिनिस्टर होंगे, उन्हीं की गवर्नमेंट होगी और वही सारे डिसीजन ले पाएगी. पावर ऑफ स्टेट्स आर नॉट फुली नॉट सस्पेंडेड, they are not eligible to execute any administrative relation. The governor of state take control over the states, and the there may be 2 or 3 bureaucrats जो टॉप प्रायोरिटी के ब्यूरोक्रेट्स होते हैं. गवर्नर डायरेक्टली अपॉइंट देम टू रूल दी स्टेट्स, ओके, अकॉर्डिंगली. और वो किसके डायरेक्शन पे काम करेंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट के. बिकॉज वी नो ऑल इंडिया सर्विस के जो ऑफिसर्स हैं वो उनका डेडिकेशन तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए. तो स्टेट गवर्नमेंट जो हैं वो बड़े डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाती ड्यूरिंग द इमरजेंसी प्रोविजन. ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है. नेक्स्ट, another form of emergency is article 356, which is properly known as presidential rule. Under presidential rule, you can see here president sole authority in India, और state government के पास power नहीं रहती. State में who is the agent of central government? Governor, appointed by the president. गवर्नर बनने के लिए क्या चाहिए? केवल 35 साल की उम्र होनी चाहिए और आप सिटीजन ऑफ इंडिया होनी चाहिए, और कोई क्वालिफिकेशन जरूरी नहीं है. तो he is the political agent of central government in any state. and स्टेट का जो रूल की जो सरकार है, जो शासन है, उसी के नाम पर चलता है. किसके नाम पर? गवर्नर के नाम पर. तो प्रेसिडेंट जो ऑर्डर देगा गवर्नर को, गवर्नर उसे फॉलो करेगा. तो अंडर प्रेसिडेंशियल रूल द स्टेट गवर्नमेंट डिसॉल्व और सस्पेंडेड और इज इन स्लीप मोड, and president can assume to himself the function of the state government and power vested in the governor. Again, governor hires some officers, majorly 2 or 3,
and those 2 and 3 officers direct the entire state accordingly. याद रखना है, when the president rule is imposed, it is not the president who rules, it is the central government who actually rules the state in the name of president, because we know the de jure is president and de facto is prime minister. तो अगर किसी स्टेट में प्रेसिडेंशियल रूल लगाया गया है तो यानी उसके सीएम की पीएम के साथ बात नहीं बन रही है और वो सही तरीके से रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है प्राइम मिनिस्टर को, और प्राइम मिनिस्टर फिर प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट एडवाइज टू द प्रेसिडेंट टू implement the article 356 in that region for the security and integrity of the India and such type of relative concern in that state. Assume कर लेंगे वो लोग कि वहाँ मशीनरी फेल हो गई, वहाँ पॉलिटिकल मशीनरी फेल हो गई और वो सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं किसको, स्टेट को, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ. कम्युनिकेशन गैप है, देयर इज अ कम्युनिकेशन गैप. इफ देयर इज अ कम्युनिकेशन गैप then wipe out the entire CM and its cabinet and फिर हम देखेंगे कि नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है उस एरिया में. ठीक है, सो आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 which contain the emergency type of provision for the state and center will take direct control over the territory of states. Next one, article 360 which mention the financial emergency provision in states. If any state make irregular financial laws or spend too much on public welfare, unnecessary public welfare, है ना, और उससे अफेक्ट होगा स्टेट का और सेंटर का जो खजाना है वो ट्रेजर. If unnecessary schemes are practiced by the state, then central government can direct to the state's treasury कि please stop such type of these schemes. They are not in the welfare or in the welfare of the center, in the welfare of the people. But if there is a provision of financial emergency, there is a crunch of finance in the entire India, then president take the direct control over the state treasury also. In article 352 and 356, president take legislative and administrative control over the state, but in article 360 president also take the financial control over the entire state's treasury. Okay, वो डायरेक्शन दे सकते हैं रिडक्शन करने के लिए सैलरी में भी किसी ऑफिसर के, इंक्लूडिंग गवर्नर, सीएम, व्हाटएवर, पब्लिक सर्वेंट, सभी की सैलरी को घटाने का ऑर्डर दिया जा सकता है बाय द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. हालांकि ये आज तक कभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ, फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी आज तक कभी इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, जरूरत ना पड़े तो अच्छा ही है, बट सच टाइप ऑफ प्रोविजन आर देयर कि अगर लगे कि बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल स्ट्रेस है कंट्री के ऊपर और अननेसेसरी खर्चों को रोकना है तो प्रेसिडेंट डायरेक्ट कंट्रोल ले सकते हैं किसी भी स्टेट के एरिया में और पूरे कंट्री में टू मेंटेन दी फाइनेंशियल पॉलिसी ऑफ द कंट्री. ओके, so these are the special emergency provision under the administrative relations. What we have studied? We studied the administrative relation between center and state. In center, the apex authority is prime minister and his cabinet, who run the government in the name of president. In the state, same thing will be done by the CM and its cabinet in the name of the governor. Okay, administrative relation is the executive relation between center government and state government, and these are 5 types. First one is distribution of executive power. Second one is center's direction to the state. Third one is cooperation between center and state. Fourth one is all India services, then integrated judicial system, and next one is relationship during the emergency. We studied the administrative relation between center and state. In previous class, we studied the legislative relation between the center and state.
तो दीज टू रिलेशंस इन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट वी हैव कवर्ड। पहले में हमने सीखा लेजिस्लेटिव रिलेशन, पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव स्टेट लेजिस्लेचर उनके बीच रिलेशन। आज हमने क्या देखा, सेंट्रल गवर्नमेंट पीएम और उसकी कैबिनेट विद सीएम और उसकी कैबिनेट, ये हमने देखा। ओके, आई होप दिस लेक्चर इज क्लियर। In next lecture we discuss the financial relation with the center and state, in between center and state. Okay, so stay tuned and please revise these two lecture in a proper manner. If you have any query you can ask into the comment box. Okay, चलिए, thank you very much.